تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ادا کروں گا PCB کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی اور پریویلیج کی بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایک اور موقع دیا ہے کہ میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے، خاص طور پہ یہ جو مجھے پینتھر کا جو ریجن کا مینٹور بنایا ہے، تو انشاءاللہ I'm very excited اور کافی جو ہے موٹیویٹڈ بھی ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی جو ہارٹ اینڈ سول ہے اس کے اندر لگا سکوں اور پاکستان کی کرکٹ کو گریٹنس کی طرف لے کے جا سکوں. تو سپر ایکسائٹیڈ ہوں. آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کروائے جو پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ گریٹنس کو اچیو کرے، نہ صرف T20 میں بلکہ ODI اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی. تو یہ ویژن ہے اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سکلز دی ہیں ہر لحاظ سے اور جتنا بھی ایکسپیرینس ہے ان سب کو جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے کہ اپنے اس ویژن کی طرف جو ہے وہ ساری صلاحیتوں کو اور ساری جو طاقتیں ہیں اس طرف لگائی جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تینوں فارمیٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ ایسے ڈیولپ کیے جائیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں. آپ ایسے وقت میں بھاگ رہے ہیں ایسی ٹیم کی مینٹورشپ کر رہے ہیں جب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا جس طرح ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہاں آپ 3 دنوں میں ہرایا کرتے تھے، آج 3.5 دنوں میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ایسا فوری طور پہ آپ لوگ جو 500 لوگ ہیں وہ کرنا چاہیں گے کہ جس شرمناک اور ایکومولیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے، اس کو آنے والے دنوں میں انگلینڈ کے خلاف سیریز، اس کے بعد آنے والے وقت میں جو ایک گراف گرا ہے اس کو واپس لا سکیں گے آپ 5 لوگ جو ہیں؟ دیکھیں، بینگ ایک کھلاڑی آپ ہمیشہ جب آپ کرکٹ شروع بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے بلڈ کے اندر ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اور ٹاسک سامنے آتے ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ، اللہ کے فضل سے ہم لوگ ان راستوں سے گزر چکے ہیں اور جب بھی کوئی چیلنج آئے گا اس چیلنج کو امبریس کرنے کے لیے اور اس چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے ہم ان راستوں سے گزرے ہوئے ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں اور بہت ہی آپٹیمسٹک وے میں آپ سے بڑی کنوکشنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے اور پاکستان کو، جیسے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ویژن جو ہوگا کہ گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈومینیٹ کریں پاکستان کے کھلاڑی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں گے. اور باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے آپ چیمپئن بن جائیں، چاہے آپ ہاریں یا جیتیں، آپ کے چیلنجز سامنے رہیں گے. وہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو چیلنجز ہیں ان میں سے لرننگ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کی پلاننگ، اسٹریٹجی، ویژن، آپ کا فوکس، ڈیڈیکیشن، پیشن، یہ ساری چیزیں کیا صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. تو انشاءاللہ کافی امید ہے، کافی کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ. اور بس آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کافی ذہن بنا کے میں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے، بٹ ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد ہی آپ رزلٹ کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیں. اس کے جو اوور نائٹ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو تھوڑا صبر بھی رکھیے گا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اچھا سر، پاکستان کی کرکٹ اسپن ڈپارٹمنٹ میں کافی لیگ کر رہی ہے اور یاسر شاہ نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر میں یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوتا تو میں 10 وکٹیں بنگلہ دیش کی لیتا. اور ان کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو 244 ان کی وکٹیں ہیں اور لاسٹ جو ٹیسٹ میچ انہوں نے 2022 میں کھیلا تھا اس میں انہوں نے 4 کھلاڑیوں کیے تھے.
क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है और जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, इन्होंने यासर शाह को ड्रॉप किया हुआ है। हमारे पास एक ही प्रीमियर स्पिन बॉलर था। आप नहीं समझते कि यासर शाह को होना चाहिए टेस्ट स्क्वाड में? ये सवाल क्वेश्चंस अपने वनडे कप के रिलेटेड रखें, पैंथर्स के रिलेटेड रखें, स्क्लैन के उसके बारे में पूछें, फिर टेस्ट टीम के बारे में कहानी। हफ्ते बाद आपके साथ इसके ऊपर बात कर लेंगे। अभी जिस चीज़ पे है उसी पे बात कर लेते हैं। किधर? अच्छा, हाँ जी। आप एक मतलब एक जाने माने स्पिनर वकार यूनुस एक फास्ट बॉलिंग में हम चले क्रिकेट टीम की एक इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है, बात आ गया मलिक एक ऑलराउंडर है, दूसरा एक बैट्समैन है। इन पांचों मेंटोर्स में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कोई स्पेशलिटी है क्रिकेट की ना, तो आप स्पिन डिपार्टमेंट है, क्या आपको जो प्लेयर्स दे रहे हैं आप उनमें स्पिनर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और दूसरी टीमों में भी अगर मेंटोर जैसे प्रकाश यूनुस की बात है, मिसबा की बात हो, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह सेगमेंटाइज भी करने की जरूरत है मेंटोर्स को, जो उनकी स्पेशलिटी है स्पेशली जैसे स्पिनर, कि वो और टीमों के भी प्लेयर लें और उनके अलग कैंप लगाएं? देखिए, ये जिम्मेदारी जो है पांचों मेंटोर्स को दे दी गई है और हम लोग आपस में इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी कंटिन्यूसली आइडियाज़ जो हैं वो शफल कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं कि ये जो बेस्ट जो प्लेयर्स निकाले हैं पाकिस्तान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 150 जो हैं, इन सब को कैसे तैयार करना है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बनाना है। और ये जहाँ पे भी प्लेयर जाएंगे, अभी आज भी यही बात हो रही थी मुशावरत में, हम लोग जो मेंटोर्स बात कर रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो अपनी स्पेशलिटी है विल बी फ्री, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ये सारे 150 एक रीजन में तो आ रहे हैं, 30-35 जो भी जो दो टीमें हैं, वुमेंस की हैं, अंडर 19 की हैं और 30 जो टॉप के हैं, तो ये तो है ही हैं। बट जितने भी जहाँ भी प्लेयर्स होंगे हम सब मिल के काम करेंगे। हमने एक फ़िलासफ़ी बनाई है, वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी, तो उसमें सारे मेंटर्स काम करेंगे मिल के, और जितने भी 150 खिलाड़ी उन सबको हम लोग जो है ना अपनी पूरी जो एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसके ऊपर हम उनको मॉनिटर भी कर सकें और उनको डेवलप भी कर सकें हर लिहाज से। तो हालांकि हर जो टीम है उसके अंदर स्पेशलाइज कोचेज़ भी हैं, तो हम स्पेशलाइज कोचेज़ को भी इस्तेमाल करेंगे और जो टॉप के जो मेंटोर हैं वो भी आपस में मुशावरत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो 150 खिलाड़ी हैं उन सब के सब खिलाड़ियों को हम सब मिल के लुक आफ्टर करें। तो वर्किंग टुगेदर फिलॉसफी इंशाल्लाह वो भी हम लोग करेंगे। मुशावरत चल रही है, इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने कोचेस की बात की है जी, तो क्या इस ओडीआई कप के अंदर हमें सिर्फ लोकल कोचेस नजर आएंगे या फिर फॉरेन कोचेस भी यहाँ पे हमें काम करते हुए आपके साथ नजर आएंगे? दूसरा कि आपकी जो टीम है उसमें आपने कैप्टन आपके कौन होगा? क्या वो यंग लड़का आप उसको लेके आ रहे हैं या कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनमें से किसी को आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म आपका सवाल हुआ ना, सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए। हमने लीडर्स भी डेवलप करने हैं, हमने ओपनर भी डेवलप करने हैं, हमने मिडिल ऑर्डर भी डेवलप करने हैं, ऑलराउंडर भी डेवलप करने हैं, स्पिनर्स भी डेवलप करने हैं, कीपर भी डेवलप करने हैं। ये जो 3 साल का जो विजन है पीसीबी का, जो चेयरमैन साहब का और जो थिंक टैंक है जिन्होंने ये सारी फिलॉसफी सामने लेके आए हैं, तो उसमें हमने सबको देखना है। अभी ये जो टूर्नामेंट आ रहा है, ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए भी कि वो सामने और आ जाएंगे। आई थिंक प्रॉब्ली जीतना, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना, ये तो टास्क है ही है, अल्टीमेट यही है सामने कि इस टूर्नामेंट में हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, देखें। सब जो पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और जो अपकमिंग ग्रेट परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, वो सब आपस में खेलें। आई थिंक कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ हमें इन सारे खिलाड़ियों का जो है ना डीपली हम लोग इनकी असेसमेंट भी कर लेंगे कि ये किस किस्म के प्लेयर हैं, और वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें हम इन खिलाड़ियों को डेवलप कर सकेंगे। ये तो खाली T20 वनडे टूर्नामेंट है, क्योंकि आगे भी वनडे टूर्नामेंट आ रहा है जो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आई थिंक वो आगे उसको भी आपको बहुत सारा ये कवर अप कर देगा। ये टूर्नामेंट हेल्प करेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेशनल टीम के लिए। बाकी ये खिलाड़ी जो यहाँ पे खेलेंगे तो ये वनडे में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करेंगे, जो कि हमें एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ या मेंटोर हमें पता चलेगा, जिसको हम T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनमें से बहुत सारा हमें मवाद मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हेल्पिंग नेशनल जो आगे कमिटमेंट आ रही है उसमें भी हेल्प कर जाएगा। प्लस ये है कि ये सारे लड़के जब खेलेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम इनकी डीपली असेसमेंट भी कर लेंगे वाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेट में असेसमेंट करना और मैच खेलते हुए असेसमेंट करना और एक
पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पे खिलाड़ियों को असेसमेंट करना, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से हमारी जो लर्निंग होंगी और जो चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो कोचेस जो है अभी डिसाइड हो रहा है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह एक आध दिन में पता चल जाएगा आपको। हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जब आप काम करते रहे हैं उस टाइम पे बड़ा इजी माहौल था और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे थी, आपने किसी प्लेयर के ऊपर दबाव नहीं डाला, टेक्निक चेंज की। इस चैंपियंस कप में जो पैंथर्स होगा उसमें एज ए स्पिनर लेजेंड आप क्या एक स्पिनर ऐसा दे सकते हैं जो कि शादाब खान, इब्रार, साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा मीर को रिप्लेस कर सके? क्या समझते हैं कि उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफी लैग है? देखिए, मैंने कादर पहले भी ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि हम लीडर भी डेवलप करें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सारे डेवलप करें, बट टाइम लगेगा इसको, और यही हमारा विजन भी है और यही एम्बिशन भी है, और इसको सामने रखते हुए हमने काम करना है। जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें कि स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। इंशाल्लाह जब हम लोग और अंदर आ जाएंगे और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो खूबसूरत चीज़ है एक तो ये कि हमें एक विज़न हमारे सामने है और हमें पता है कि इस विज़न के ऊपर हमने कैसे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उसके प्रोसेस कैसे बनाने। और ख़ूबसूरत बात यह है कि जितने भी मेंटोर हैं और सब के सब, मेरी जितनी भी 3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं और बात कर रहे हैं, सब के सब एक पेज पे हैं और सब के सब कह रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से इनको एक जिम्मेदारी मिली है, और ये सब के सब इंक्लूडिंग वक़ार यूनुस साहब, मिसबा, शुएब मलिक, सैफ़ी, माई सेल्फ, कि हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे इसके ऊपर, और हमने इंशाल्लाह ये पूरा जोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी सारी सलाहियतों के साथ कि इन 3 सालों में पाकिस्तान को हम जो है वो ऐसा एक मवाद दे दें, ऐसे प्लेयर दे दें जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को उसका नाम रोशन करें। बांग्लादेश में पाकिस्तान की क्रिकेट का पूरा ओवरऑल फैक्टर सभी करके रखती है, तो क्या हमारे यहाँ क्वालिटी बॉलर और स्पिनर कम हो गए या लड़कों में? अच्छा, सवाल आप कर रहे हैं, आपसे सॉरी मैं उधर ही देख रहा था। अब लड़कों में आप वो कोचिंग सीखने का वो है नहीं कि हमारे कोचिंग के इशू है कि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, टेस्ट मैचेस जैसे जीते जाते थे। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस को भी मौका मिला है, तो कभी कहाँ दिखते हैं जिसको आप बेहतर करने की कोशिश करें? अभी ये फिर सवाल आप जो है वो मैंने मेरा ख्याल है रिपीट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और टाइम की किल्लत भी है। हमें पता है कि हमें किस लेवल पे हमें टेस्ट क्रिकेट के स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन या ऑलराउंडर तैयार करने हैं, और किस लेवल के हमें जो है वो ओडीआई और T20 के हमें प्लेयर्स को तैयार करना है। देखें 5-4 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिजिकल, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, और एथिकल, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम सारे एरियाज़ को कवर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करें, उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा कि अगर सपोज एक टीम यहाँ पे और पाकिस्तान यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में, तो हमने विद इन टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने अरसे में हमने इस लेवल को हमने टच करना है। हम उनके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वो भी ऊपर जाएंगे, उन्होंने भी प्रोग्रेस करनी है। तो हम किस लेवल से, ये क्या प्लानिंग या क्या स्ट्रेटजी बने कि हम उनको ऊपर से आके मैच करें रादर देन हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। तो हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो फर्स्ट सपोज जो भी दुनिया की नंबर 1 टीम है इधर है और हमारा लेवल इधर है, चाहे वो स्किल्स के एतबार से है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, चाहे वो एथिकल है, या किसी भी एस्पेक्ट के एतबार से है। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी, टीम प्रोफाइल बनेगी, लीडरशिप की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कैसे करना है, और दूसरों की, जैसे फर्ज किया टीम नंबर 1 जो भी है या प्लेयर नंबर 1 जो भी है या ऑलराउंडर नंबर 1 जो भी है, उसका और हमारे में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने अरसे में हमें अचीव करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और उसके प्रोसेसेस बनेंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट इट विल टेक टाइम।
اس میں ٹائم لگے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پاکستان کی جو زمین ہے یہ بہت زرخیز زمین ہے. یہاں پہ آپ کو ایسے ایسے ٹیلنٹ ملیں گے, ایسا ایسا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ بس اس کو اگر ہم نے صرف وہ ڈائمنڈز ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کو کاو کرنا ہے, پالش کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. پہلے بھی ہم نے ڈومینیٹ کیا دنیا کو, ٹھیک ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, بٹ ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے, ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈومینیٹ کریں گے دنیا کو. اور بس یہ ہے, اٹس اے میٹر آف تھوڑا سا پیشنس ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو. کدھر آپ کا ہاتھ کدھر؟ ہاں جی صاحب, افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو پالیسی بات کرتے ہیں کہ چیئرمین صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے یہ لیے بات کی. آپ بھارت 7-8 سال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ نسیں گے, اسپنر کو نہیں کر سکتا. اب ایسی کون سے آپ کام کریں گے, یہ کون سے ایسی باتیں کریں گے, یہ کیا کریں گے کہ جو باتیں آپ نے کیے ہیں ان پر عمل ہو جائے گا؟ اچھا, آپ کا یہ جو سوال ہے اس سوال کو میں تھوڑا سا اور صحیح کر دیتا ہوں. آپ نے کہا 7-8 سال. میں نے پی سی بی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا, این ایچ پی سی کا ہیڈ بنا, کورونا کے دن تھے. میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے اوپر تھوڑا سا ایک ٹرو پکچر سامنے آ جائے سب کے سامنے. تو 3 سال کا میرا وہ سائن تھا, غالباً 2021 میں آیا اور کورونا اس وقت چل رہا تھا. 6 سالوں میں ہم نے یہ سارے پلاننگ اسٹریٹجیز بنائے, پروٹوکولز بنائے, ویژن کیا تھا, نیشنل فریم ورک کیا تھا, وہ سارے کام کیے. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نکلے کورونا سے تو تقریباً ہمارا ڈومیسٹک سیزن شروع ہو گیا. 1 سال ایسے نکل گیا, اس کے بعد بورڈ چینج ہوا. بورڈ چینج ہونے کے بعد میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ لگا اور تقریباً 1.5 سال میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ رہا. اور وہاں پہ در پہ ٹورنامنٹ تھے, 2 ایشیا کپ تھے, 2 T20 ورلڈ کپ تھے, اور اس کے ساتھ آسٹریلیا سیریز, انگلینڈ سیریز, ویسٹ انڈیز سیریز, بنگلہ دیش سیریز, سری لنکا سیریز, یہ ساری سیریز تھیں. ایز اے ہیڈ کوچ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جو میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا. نیشنل فریم ورک جو بنا این ایچ پی سی میں, جو اس وقت این ایچ پی سی تھا, اب این سی ہے, اس وقت جتنا بھی پیچھے جو بینچ مارکس تھے اسکلز کے اعتبار سے, وہ سارے بینچ مارکس بنائے گئے, چاہے بیٹنگ ہے, بالنگ ہے, فیلڈنگ ہے, چاہے کوچ ڈیولپمنٹ ہے, پلے ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارے وہ بنے. یہ آپ کے سوال کے اوپر یار ہوں, کیونکہ آپ نے 7-8 سال کہا تو مجھے وہ ظاہر احتساب تو کرنا ہی ہے اپنا. تو میرے پاس کوئی ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں اتنی جگہوں پہ رہتے ہوئے میں کہیں اور کام بھی کر پاتا. اس وقت جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, جتنا میں نے کام کیا یہاں پہ, اور جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری لرننگس تھیں, میرے پاس الحمدللہ کافی چیزیں اس وقت میرے دماغ کے اندر بھی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہیں. لیپ ٹاپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ, پھر کوئی سوال آ جائے گا, اب لیپ ٹاپ والا بندہ بھی آ گیا, داڑھی ٹوپی بھی رکھی تھے, چشمہ بھی پایا تھے, تو بھی کوئی سوال بن جائے گا. تو خیر بہرحال اینی وے, آپ پہلے ویژن طے کرتے ہیں, اور آئی تھنک پی سی بی کی طرف سے جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان گریٹ ٹیم بنے, پاکستان ڈومینیٹ کرے. تو ہمیں سراہنا پڑے گا, ہمیں کہنا پڑے گا. اور اگر یہ نئی چیزیں کی جاتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے؟ سابقہ بورڈ والے یہ نہیں کرتے تھے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آتا ہے وہ بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اب یہ سوال کہیں اور سے کہیں اور نکل جائیں گے. ہم جس کے لیے آئے ہیں تھوڑا سا اس پہ آ جائیں, اس کے اوپر پھر بعد میں چلے جائیں گے, کیونکہ اوروں کو بھی موقع دینا چاہیے. جی, پاکستان کرکٹ بورڈ پہلی مرتبہ ڈومیسٹک لیول پر چیمپئنز ٹورنامنٹ کروانے جا رہا ہے. آپ کے بیان میں, کیونکہ ڈومیسٹک سطح پہ باقی ٹورنامنٹ تو پہلے ہی ہوتے ہیں, تینوں فارمیٹ میں ہوتے ہیں, T20 ون ڈے اور فرسٹ کلاس بھی ہوتے ہیں, تو یہ چیمپئنز ٹورنامنٹ پہلے ٹورنامنٹ سے کتنے مختلف ہیں, یہاں سے کتنا کیا وہی لڑکے جو دوسرا ڈومیسٹک کھیلتے ہیں وہی یہ کھیلیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نیشنل ٹیم کے ساتھ تھے, آپ نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی قدرت کا نظام. جی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے قدرت کا نظام بھی ہم سے روٹ چکا ہے؟ صرف ون ڈے کا پلیز. چیمپئنز ٹورنامنٹ. اچھا, یعنی موسم اچھا رہے تو قدرت کا نظام آپ کی طرف ہے, اور موسم اچھا نہیں تو قدرت کا نظام آپ کی طرف نہیں ہے. آپ کو پنچ لائن مل گئی میرا خیال ہے, اب آپ لگا دیجئے گا اس پنچ لائن کو. باقی یہ ہے کہ دیکھو, اس چیمپئنز یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس میں کچھ ہم لوگ ایسی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے, کیونکہ آگے ون ڈے ٹورنامنٹ ہے میگا جو ہم پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں. وہ کون سا ٹورنامنٹ ہے؟ چیمپئنز ٹرافی. اچھا, یعنی آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے. نہیں, میں اس ون ڈے کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو رکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو وننگ فارمولاز ہوں گے ساری ٹیموں کے,
जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, उनके विनिंग फार्मूलाज हैं, उनको देखते हुए उसको रिसर्च करेंगे, उनको सामने देखते हुए आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ऐसे जो है वो टास्क दिए जाएंगे कि उनको वो हिट करें, ताकि इनके विनिंग फार्मूलाज कैसे हैं या वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी, इसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं भी मुल्क से बाहर था और बड़ा शॉर्ट नोटिस में सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट, ये जो है तो 50 ओवर, कुछ ऐसे हम लोग पॉइंट्स रख दें, उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम लोग, जैसे आप अक्सर कहते हो या तो स्ट्राइक रेट है या मिडल में आप आउट नहीं कर पा रहे, चेज कितने में किया, नेट रन रेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें से कोई फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे खिलाड़ियों का माइंडसेट, इंटेंसिटी, मोमेंटम और वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम वो उनकी इन्हांस हो, डेवलप हो, ताकि आने वाला जो टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी तैयारी हो और पाकिस्तान टीम को हेल्प हो सके। और ऑब्वियसली यंगस्टर्स और जो करंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के, वो सब मिल के खेलेंगे और यंगस्टर्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा, और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जाहिर है वो उनको जो है वो पुश करेंगे और उनका भी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश होगी। और जो क्रिकेट को जो हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पॉइंट्स टेबल का जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब पॉइंट्स टेबल आएगा तो इंशाल्लाह जो थोड़े से एलिमेंट्स रह गए हैं वो भी इन्हांस होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या विकेट टेकिंग स्किल्स मिडिल ऑर्डर में या एंड में। सिकंदर भाई, आप लोग 3 साल के प्लान के साथ आए हैं चैंपियंस का डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक करने के लिए। आपके नजदीक जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो नहीं है, मतलब कि कोई भी अगर कदम लेता है चीजों को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक सतह पे इतने स्तर पे, तो मतलब अगर सिस्टम चेंज हो जाएगा तो आपके नजदीक इसको किस तरह लीगल किया जाए कि चैंपियंस का हर साल होती है, ये ना हो कि अगर पीसीबी का सिस्टम चेंज होता है तो फिर चैंपियंस का नोटिस पास से जुड़ने की शुरू हो गई, तो इसको किस तरह मुस्तकिल बुनियादों पर कराया जाएगा ताकि हर साल हो, और जो 3 साल का आपका प्लान है ये करामत हो, 3 साल बाद में कह सकते हैं कि पाकिस्तान को चक्कर। देखिए, ये सवाल आपका मेरे से नहीं बनता, मेरा जो काम है मैंने उस तरफ देखना है, बाकी हालात आगे क्या आते हैं, महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू दैट। मुझे जो अपना प्लान स्ट्रेटजी बनाना है, मैंने 3 साल की कमिटमेंट की है कि मैं 3 साल में जो है अपने इस रीजन को, या हम सब मेंटोर ने मिल के 3 साल में कहाँ जाना है, हमने अपनी एक डायरेक्शन जो हमें दी गई है उस डायरेक्शन को तयन करना है और उसके ऊपर हमने स्टेड फास्टनिंग, उसके ऊपर इस्तकामत के साथ चलते चले जाना है। बाकी हालात कल को क्या होते हैं वो अल्लाह जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अच्छा स्लैश भाई, बात तो बहुत हो गई कि क्रिकेटर्स अब तैयार करेंगे, स्पिनर्स तैयार होंगे, बैटर्स तैयार होंगे, क्या इस पर भी बात होगी चैंपियंस कप के अंदर खिलाड़ी की ट्रेनिंग के दौरान कि हमने इस सितारे के लिए खेलना है तो हमारे सीने पर लगा है, और हमने जब बड़े लेवल पर जाना है तो हमने इस वतन के लिए खेलना है और आप ही एंड तक एफर्ट करनी है? क्योंकि जब आप थे कोच तो हमने देखा था कि पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आता था ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कैंप के दौरान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ऐसा लगता है कि लड़के एफर्ट कम देते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अपना दिल छोड़ देते हैं। देखिए, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इसी तरह की ही जो है ना क़यास-ए-राइयाँ और सोचें बनना शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं समझता कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, जब आपका स्टार जो है माथे पे और सीने पे आ जाता है तो आपका फोकस कहीं इधर उधर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नहीं है, आपका सवाल बनता है, इस तरह की सोच का आना भी बनता है, बट मैं ये समझता हूँ और मेरी अपनी फ़िलॉसफी भी यही है डे 1 से, कंट्री टीम मी, ये फ़िलॉसफी है। पहले मुल्क है, मुल्क के अंदर जो टीम है मैं उसके लिए हूँ, और मैं अपनी ज़ात से निकल के मैं इस टीम और कंट्री को सर्व करूँगा हर लिहाज से। मेरा खेलना और मेरा बाहर बैठना ये मेरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, मेरी टीम को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसको सर्व करने के लिए तैयार हूँ, हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हूँ। तो कंट्री टीम मी की फ़िलॉसफी जो है वो हमेशा से चलती है, और आई एम श्योर जो करंट खिलाड़ी हैं या जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उन सब के अंदर ये जोश और जज्बा होता है। जैसे आप सब लोग सराहते भी हैं, पूरा पाकिस्तान सराहता है, यार किसको नहीं अच्छा लगता 24 करोड़ अवाम जब आप निकलते हो बाहर, जब वो आपको इज़्ज़त से देखते भी हैं और इज़्ज़त से पुकारते भी हैं। कौन चाहेगा कि मुझे इज़्ज़त से ना बोला जाए, ना पुकारा जाए? कोई भी ऐसा नहीं है। हालात आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती हैं, बट आप आगे भी जब खेल रहे होते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन जाके किसी से भी पूछ लें, या इंडिया ठीक है वो इस वक्त वर्ल्ड कप जीती है, आप उनसे पूछ लें, वो हमेशा कोई ना कोई विजन सामने रखेंगे और हमेशा वो जो उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो और आगे लेके जाएंगे। स्काई इज लिमिट,
छोटी आप नीचे स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हो, आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहते हो, हमेशा इंप्रूव करते रहते हो और हमेशा डोमिनेट करने के लिए आप हमेशा कोई ना कोई विजन सेट करते हो। तो आई थिंक ये हमने भी पीसीबी ने भी एक विजन सेट किया है और इस विजन के लिए उन्होंने हमें जो है जिम्मेदारी दी है। हम लोग सुपर एक्साइटेड भी हैं और इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल जितने भी मेंटर्स हैं, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड के जब 5 से हम लोग कैंप शुरू करेंगे, कंट्री टीम मी की फिलॉसफी को सामने लेके जाएंगे। विल वर्क टुगेदर, वर्किंग टुगेदर फिलॉसफी होगी, सारे मेंटर मिलके काम करेंगे और इंशाल्लाह आप सब जो लोग हैं वो आपकी दुआएं भी चाहिए होंगी, ज़रूरत होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 3 साल तक जाएं और इंशाल्लाह रिजल्ट प्रोड्यूस करके जाएंगे। अल्लाह से कभी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जी।